Namaskar, Jai Hind dear students. As you seen in the previous video, we are solving exercise 3.2 and till now we had solved up to question number 18 of exercise 3.2. Now it's time to solve question number 19. So now let's see what question number 19 says. Actually it is a word problem, and as you know that in word problem you have to construct the conditions according to the question. Now see, we are reading the question. Now let's see. A trust has rupees 30,000 that must be invested in two types of bond. हिंदी में कहें तो एक ट्रस्ट के पास कुल 30,000 रुपए हैं और उसको दो तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है. अब आगे कंडीशन क्या कहती है? द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर. इंटरेस्ट पर ईयर मीन्स जो फर्स्ट तरह का बॉन्ड है वो पे करता है आपको 5% पर ईयर का इंटरेस्ट, और जो सेकंड तरह का बॉन्ड है वो पे करता है 7% का इंटरेस्ट पर ईयर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन नाउ. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हियर वी हैव टू यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bond. मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके आपको ये पता करना है कि हम जो 30,000 रुपए दिए हुए हैं उनको दो बॉन्ड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हमको ईयरली जो इंटरेस्ट से इनकम हो वो कितनी हो, 1800 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2000 या फिर 2000. मीन्स ये दिया हुआ है. डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bond if the trust must obtain an annual total interest of. मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं. सिंपल सी बात है कि एक ट्रस्ट है जिसके पास टोटल 30,000 रुपीज है और उसको दो तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है. 30,000 रुपीज को दो तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है. अब जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर और जो सेकंड तरह का बॉन्ड है वो देता है 7% का. अब ट्रस्ट को इन दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट वो किस तरीके से करे कि उसको टोटल एनुअल जो इंटरेस्ट मिले, रिटर्न मिले, वो फर्स्ट पार्ट 1800 और सेकंड पार्ट 2000 मीन्स 2000 रुपीज मिले. तो दोनों पार्ट्स को हमको सॉल्व करना है. तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. Now, total amount we have 30,000 rupees. So total amount is equal to ₹30,000. Here we have two types of bond. So we have to suppose the amount we are going to invest in first bond and in second bond. So let amount invest in first bond. So we are suppose in first bond we are investing ₹X. So amount invest in second bond will be, now here see, total we have 30,000 rupees and in first bond we have already invested ₹X. So remaining amount we will invest in second type of bond, means ₹30,000 minus X. Okay, it is clear. So first we will make the matrix from these investment. So let us suppose a matrix. First we invested ₹X and secondly we have invested ₹30,000 minus X. Okay, it is clear. Now let's see, first bond pays return of 5% and second bond pay return of 7%. So interest pays on first bond is equal to 5% per year या फिर per annum. So 5% we wrote 5/100. Okay, and interest pays on second bond
What is the interest rate? 7% per annum या फिर per year. So it will be 7/100. So from here the B matrix will be 5/100, 7/100. Okay. Now here it is clear. So the total, here we are solving first part. Okay, we are solving first part. This is the common part in all. This is the common section in part A and part B. Now let's see amount, total interest is equal to rupees 1800. We are solving first part. So total interest is rupees 1800. Now, so the rupees 1800 is total interest, and how we get it? We are getting it by the investment in first one and in second one. So here the multiplication of A matrix and B matrix gives the result 1800. So this 1800 will form a matrix 1800, and it is this matrix we will get by the multiplication of A matrix and B matrix. Now here we are substituting the value of A matrix x and 30,000 minus x. Value of B matrix is 5/100, 7/100 is equal to 1800. Now multiply it. You know the multiplication. How we are going to multiplicate the matrix? Raw multiply by column. So x multiply 5/100. It means 5x by 100. Proceed by plus sign. Now 30,000 minus x multiply by 7/100. So we will get 7 into 3, 21. Then next 40 digit. Then next minus 7x upon 100. This gives 1800. Now see, this is a matrix of 1 by 1 and this is also 1 by 1. So on comparing we get 5/100, 5x/100 plus 2,10,000 minus 7x upon 100 is equal to 1800. Now here we will take the LCM. LCM will be 100. Now 5x plus 2,10,000 minus 7x is equal to 1800. Now do cross multiplication. First here solve. Minus 7x plus 5x minus 2x plus 2,10,000 is equal to 1800 multiplied by 100. This gives 1,80,000. Now here we will solve. So minus 2x is equal to, now 2,10,000 will transfer to right hand side and will give the answer minus 30,000. Now transferring minus 2 to this side and it will give the result x is equal to 15,000. It means the value of x is 15,000. It means we must have to invest in first one rupees 15,000 and in second one we have to invest rupees 30,000 minus 15,000. This also gives the result 15,000. So we will get annual interest of rupees 1,800. So we can finish the question solution by, therefore we have trust have to invest rupees 15,000 in first one and 30,000 minus 15,000 gives also result rupees 15,000 in second want to obtain annual interest of rupees 1,800. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया. सिंपल सा क्वेश्चन था.
एक ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपए हैं, उसको दो तरह के बॉन्ड में फंड को इन्वेस्ट करना है। अब जो पहला बॉन्ड है 5% का ब्याज देता है, दूसरा बॉन्ड है 7% का ब्याज देता है। अब उसे टोटल ब्याज पूरा कितना चाहिए, 1800 रुपीज चाहिए। तो पहले हमने माना कि उसमें फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट करेगा, सेकंड बॉन्ड में बचे हुए पैसे करेगा, मींस 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इंटरेस्ट रेट की उससे अपने मैट्रिक्स बना ली, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा 1800। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी है हमारी 15,000। तो फर्स्ट तरह के बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करेगा 15,000 रुपए और सेकंड तरह के बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट करेगा 15,000 रुपए। तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1800 रुपीज। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सारा सेम है, सेम तरीके से करना है। ये दो क्वेश्चन बन के एक क्वेश्चन दिया है, बस यहां से चेंज करना है। 1800 की जगह आपको लिखना है 2000। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट आंसर्स आएंगे। मींस फर्स्ट तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें और सेकंड तरह के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. The question number 20 says that the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. The selling price are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling of all books using matrix algebra. तो इसका हिंदी में कहें तो ये है, एक बुक शॉप है जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, जिनकी प्राइस है ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच बुक। तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करके हमको ये फाइंड करना है कि अगर सारी बुक्स बिकती हैं तो बुक शॉप को कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो इसमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा का मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज 10 dozen. 1 dozen represents 12 units. So the total number of books here is 120 books. Number of physics books is 8 dozen, means 8 dozen. So 8 multiplied by 12. 8 multiplied by 12, so it will give 96 books. Okay, then number of economics books is also 10 dozen. So number of books will be 120. So here from the number of books we will form the matrix A. Matrix A will be, therefore matrix A will be 120, then 96 and 120, and we will form the matrix B by their selling price. So the selling price SP of books are ₹80, 60 and 40 respectively each. Therefore the matrix B will be 80, 60 and 40. Now here we will use the matrix multiplication to find the total amount received by the shop. So now we will find the multiplication AB. So matrix A is 120, 96, 120 multiply by 80, then 60 and 40. Now we will do the multiplication of AB. So AB is equal to
120 multiplied by 80, it will give us 9600 plus 96 multiplied by 60, it will give us 5760 plus 120 multiplied by 40, it will give us 4800. So AB is equal to, now add this 9600, 5760 and 4800, it will give us result 20160. So the total amount will receive by the shopkeeper, yeah, the shop is 20160. This is therefore the total amount will receive from selling of all books is equal to rupees 20,160. So this is the solution of question number 20. Now we will see question number 21. Question number 21 is objective type of question and it has two parts, means question number 21 and question number 22. But the basic of the question number 21 and 22 is given in a common sense. So now let's see. Now dear students, let's see question number 21 and 22. Before starting question number 21 and 22, some instructions are given. So the instructions are: assume X, Y, Z, W and P are matrices. X, Y, Z, W and P are matrices of order. X मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2/n, Y मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3/k, Z मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2/p, W मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है n/3 और P मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है p/k. तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p, means restriction on n, k and p. We have to find out the restriction on n, k and p so that py plus wy is defined. मीन्स क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन में ये 5 हमको मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनके ऑर्डर्स दिए हुए हैं. अब हमको एक रिस्ट्रिक्शन फाइंड करना है n, k और p के लिए, जिसमें py प्लस wy हमारा क्या हो, डिफाइन है. ठीक है, ये क्वेश्चन करना है. और इसमें हमारे ऑप्शंस दिए हैं ए ऑप्शन दिया है हमारा k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू p. बी ऑप्शन दिया है हमारा k इज आर्बिट्ररी एंड p इज इक्वल टू 2. सी ऑप्शन दिया है हमारा p इज आर्बिट्ररी एंड k इज इक्वल टू 3. और डी ऑप्शन दिया है k इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 3. ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको बताना है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. py प्लस wy दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने y ले लिया कॉमन, तो w प्लस y p प्लस w इंटू y. देखिए यहाँ पे p और w दोनों मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, एडिशन. और जब मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम. मीन्स हमारी w मैट्रिक्स और p मैट्रिक्स, ये इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम. ऑर्डर सेम मीन्स इनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम. मीन्स यहां से कंपेयर करें हम तो n इज इक्वल टू p तो आ ही रहा है हमारा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रो क्या होंगे, सेम. n इज इक्वल टू p एंड k इज इक्वल टू 3. k इज इक्वल टू 3. तो ये समझ में आ गया हमको कि इनका एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम. तो यहां से कंपेयरिंग करने पर n इज इक्वल टू p आ रहा है, k इज इक्वल टू 3 आ रहा है. मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हमको पता चल गया. थोड़ा और सॉल्व करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाय भी दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर n इज इक्वल टू p है, तो या तो इसका ऑर्डर जो होगा n/3 होगा या फिर p/3 होगा, बिकॉज k इज इक्वल टू 3 है. ये तो हमारा p प्लस w का इनमें से कोई एक ऑर्डर होगा. ठीक है, इंटू y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/k. अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम. देखिए ये तो सेम है 3 3.
अब नेक्स्ट क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन से नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या आता है, फर्स्ट के नंबर ऑफ रो और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, या तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई के या फिर n बाई पी, जो ये मल्टीप्लीकेशन से मैट्रिक्स आएगी। तो टोटल कंक्लूजन निकल के ये आता है कि k इज इक्वल टू 3 तो है ही हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको n और p की वैल्यू पता नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू p, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। यस, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है इफ n इज इक्वल टू p, कंडीशन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। ठीक है, कंडीशन दी है n और p दोनों इक्वल हैं और हमें इसका ऑर्डर बताना है, और दोनों क्वेश्चन में ये x, y, z, w और p इनके ऑर्डर ऑलरेडी पहले से डिफाइन दिए हैं। चलिए देखते हैं, ये x 7x माइनस 5z। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करने से x मैट्रिक्स का ऑर्डर तो चेंज होना ही नहीं है, जो ऑर्डर है एज इट इज रहेगा। 5 का z मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से भी ऑर्डर कोई भी चेंज नहीं होगा, मींस इन दोनों के ऑर्डर जो ओरिजिनल दिए हो वही के वही रहेंगे। तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, 2/n, और z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/p। तो देखिए मैट्रिक्स का एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, मींस नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ रॉ सेम है और कॉलम्स ऑलरेडी उन्होंने क्या दिए हैं, सेम दिए, n इज इक्वल टू p दे रखे हैं। ठीक है, अब हमको इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2/n होगा या फिर 2/p होगा, क्योंकि n और p ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं इनमें से कौन सा आंसर दिया है। फर्स्ट दिया है हमारा ऑप्शन ए p/2, ऑप्शन बी दिया है हमारा 2/n, ऑप्शन सी दिया है हमारा n/3 और ऑप्शन डी दिया है p/n। सो इनका जो सब्ट्रैक्शन करके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो या तो 2/n होगा या फिर 2/p। तो यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2/n। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ते रहिए।